عوامی نمائندہ ہوتا کیا ہے؟ وہ عوامی کے لیے ہوتا ہے. ہم آپ کے پاس کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ تاکہ عوام کو آپ کا کیا ہوا کام وہ ہائی لائٹ ہو اور پتہ چلے کہ فاروق صاحب کس نظریے کے ساتھ عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. توصیف صاحب، میرے پاس ریکارڈ ہے باضابطہ، میرے پاس ڈاکومنٹل پروف ہے. میں ہر ایک بندے کو یہ کہنا چاہتا ہوں، لولاب واسی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، فاروق میر آپ کا خادم ہے. فاروق میر نے اپنی جوانی آپ کے لیے وقف کی ہے. جہاں تک میرا بس چلے تو میں لولاب کے لیے نہیں بلکہ ضلع کپوارہ کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں. السلام علیکم، میں ہوں توصیف ہمدانی، ونگز ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں حاجی فاروق صاحب. فاروق صاحب وائس چیئرمین ہیں ڈی کپوارہ، اور آج ہم انہی کے ساتھ بات کریں گے ڈیولپمنٹ ورکس پہ. ان کا جو پورا ٹینیور گزرا ہے، کیونکہ یہ خود پیپلز کانفرنس سے وابستہ ہے سیاسی سطح پہ اور ڈیولپمنٹ سطح پہ، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ اکائیاں ہیں. ان پہ انہوں نے کس طرح سے اپنی چھاپ چھوڑی ہے اور عوام کے تئیں ان کی جو تمام جو کام ہے وہ کیسے انہوں نے ابھی تک ان پہ اپنا دسترس رکھا ہے. ہم ان سے بات کریں گے آج، عوامی مسائل ان کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد آج ان سے جواب لیں گے کہ کس طرح کا کام ہوا ہے ابھی تک. فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. توصیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. فاروق صاحب آج میں پہلی بار آپ سے مخاطب ہوں. تقریباً ایک عرصہ گزر گیا، 3 سال آپ کے ٹینیئر کے مکمل ہو چکے ہیں. 2.5 سال مکمل ہو گئے، میں معافی چاہتا ہوں. 2.5 سال آپ کے ٹینیئر کے مکمل ہو چکے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں ابھی تک آپ کے جو آپ کا لولاب کانسٹیچوئنسی ہے، جو آپ کی لولاب کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں ابھی تک کون کون سے ڈیولپمنٹس ورکس ہوئے ہیں اور عوام کا رد عمل کیا ہے اس میں؟ دیکھیے توصیف، چونکہ میں آپ کا اپنا تعارف بتاؤں، فاروق میر میرا نام ہے. میں ڈی ڈی سی ممبر ہوں واورا سے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کپوارہ کا وائس چیئرمین ہوں. مجھے یہ منڈیٹ ہے کہ میں آپ کو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کپوارہ کے ہر ایک معاملے میں سے بات کر سکتا ہوں. چونکہ آپ نے مجھے پرٹیکولر لولاب کا معاملہ پوچھا، جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. واورا سے میں منتخب ہو کر آیا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جموں کشمیر میں سب سے زیادہ ووٹ بحیثیت ڈی ڈی سی ممبر میں نے حاصل کیے. جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں، واورا ایک فارفلنگ ایریا ہے، پچھڑا ایریا تھا. آج تک ہر لحاظ سے اس کو سابقہ حکمرانوں نے اگنور کیا تھا. الحمدللہ جب سے میں آیا، لوگوں نے یہاں مجھے بھیجا، اس کرسی پر مجھے بٹھایا. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں فخر سے کہوں گا کہ جتنا کام میری ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی واورا میں ہوا یا لولاب میں ہوا میرے ذریعے سے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج تک کسی جگہ ہوا ہوگا یا کورس اور کوئی کر سکتا ہے. رہی بات ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہم لوگ جو پچھلے علاقے سے بلانگ کرتے تھے، روڈز کے حوالے سے، پینے کے پانی کے حوالے سے، الیکٹریسٹی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ایون جتنے بھی سیکٹرز ہیں عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو در پردہ رکھا گیا تھا، اگنور کیا گیا تھا. آپ کو میں پہلا اپنے ٹین اوور کی ایک مثال دے دوں گا. 2017 میں ہمارا ایک روڈ CRF روڈ منظور ہوا تھا، کھمریال رنگورنم روڈ. صرف واورا تک وہ نکالا گیا تھا. 25 کلومیٹر کا پروجیکٹ تھا. میری ذاتی کاوشوں کی وجہ سے جب میں ڈی ڈی سی الیکشن لڑ رہا تھا 2 سال پہلے، اگر آپ بھی وہاں جاتے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ کا من دوبارہ جانے کے لیے ہوتا. 25 کلومیٹر روڈ میں نے مکمل کروا دیا، CRF روڈ، جو کہ کھمریال واورا تک مکمل ہوا تھا. اس کے بعد واورا سے پورا رنگ ٹل اس کو بولتے ہیں، اور 4 کلومیٹرز گاگل. یہ روڈ کے حوالے سے یہ CRF کا بہت پرانا پروجیکٹ تھا. لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس علاقے میں کوئی جاتا نہیں تھا. میرا یہ مدعا ہے، گاؤں میں نہیں بلکہ گھر گھر میں روڈ پہنچاؤ. حال ہی میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو VKH کلی گام لالباب صاحب چیپورہ میداپورہ شالپورہ سے منسلک روڈ ہے. اس کا بھی آن گوئنگ کام ہے. شکر الحمدللہ وہ 80% مکمل ہوا.
آپ اس وقت دیکھتے ہیں میرے علاقے کی سڑکیں دیکھ کر آپ کو پورا پتہ چلے گا کہ آج کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں نے کتنی ڈیولپمنٹ کی. کیوں میں ایک بنیادی طور ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے بہت کچھ جھیلا ہے، مجھے پتہ ہے کہ سوسائٹی میں کیا مسئلے ہیں اور کیا مسائل ہیں. آج تک ہمیں اگنور کیا گیا تھا. جتنے بھی سرکاریں آئی تھیں، چاہے کوئی کولیشن سرکار ہو یا کسی کی علیحدہ سرکار ہو، انہوں نے حلقہ انتخاب واورا کو جو ٹیریٹوریل کانسٹیٹوینسی واورا ہے بالکل پشت رکھا تھا. کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. فاروق صاحب، میں آپ کو جب آپ لولاب جاتے ہو، جب آپ لولاب کا دروازے پہ جاتے ہیں، جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، آپ کا جو پل ہے، جو ون وے پل ہے، اس کے لیے آج تک کسی سے بات کی؟ جو یہاں سے ہم نکلتے ہیں گالیزو پل. بالکل. دیکھیے، یہ آپ کو میں اس کے لیے میں آپ کی توجہ یہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے توصیف بھائی، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ نے مجھے پل کی بات کی. ٹھیک بات ہے کہ لولاب بائی پاس جو نکلا تھا، اس کا جو پل ہے ادھر گیریٹی میں سنگل وے ہے. جب وہاں ٹریفک جام ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کتنا تکلیف لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرلل بائی پاس کا نام آپ نے سنا ہوگا. تھوڑا بہت کٹنگ وغیرہ ہو چکی تھی اس کی، کسی نے آج تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی. الحمدللہ میری ذاتی کاوشوں کی وجہ سے، کونسل کی کاوشوں کی وجہ سے پرلل بائی پاس کے لیے بھی ہم نے UT کے پیکج بجٹ سے پیسہ دلوایا، لگ بھگ 1.5-2 کروڑ روپیہ. اس کا بھی ٹینڈر ہو چکا ہے، اس کا بھی کام ہوگا. رہی بات جو آپ نے پل کے بارے میں مجھے بتایا کہ نبارڈ میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ہم نے پیراٹائز کروایا اس کی وائڈنگ کے لیے. اس کے ساتھ جو کہ گلیزو برج ہے، یہ آپ کو اپنے اسٹیڈیم کو جاتا ہے، اس کا بھی ہم نے باضابطہ DPR بنایا ہے. اس کی بھی سینکشن ہو چکی ہے. کچھ دنوں میں اس کا صرف ٹینڈر پروسیس باقی ہے، باقی اس کے بعد اس پر کام لگے گا. مستقبل قریب میں آپ دیکھو گے اس پل پر کام لگایا. ہماری کاوشوں کی وجہ سے ہم سے پہلے بھی بہت بڑے لوگ تھے جن کے پاس جھنڈے تھے، سب کچھ پروٹوکال تھا، مگر انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی میں ذاتی کاوشوں کی وجہ سے میں بہت خوش قسمت ہوں. میں اس کونسل میں سب سے سینئر بندہ ہوں. میں اپنا عرفان سلطان پنڈت پوری صاحب جو ہماری کونسل کے چیئرمین ہیں، اپنی پوری ٹیم لے کر جتنی بھی ٹیریٹوریل کانسٹیٹوینسی ہمارے پاس 14 ہیں اور اس کے بعد 24 ہمارے BDC ممبران ہیں، ان کو لے کر جتنی بھی ہماری کانسٹیٹوینسی ہیں، چاہے ٹیریٹوریل کانسٹیٹوینسی ہیں یا بلاک یہاں جتنے بھی بلاک ہیں، ہم ضلع کپوارہ کو ایک ماڈل ضلع بنانے چاہتے ہیں. پوری نہیں کیا میری ذاتی کاوشوں کی وجہ سے. میں پہلے دن سے اپنے لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا جی کو بار بار ملا. میں ان کا بہت ذاتی طور مشکور ہوں، UT ایڈمنسٹریشن کا، جنہوں نے میرے کوشش کی وجہ سے وہ روڈ کی منظوری دی. 150 کروڑ روپیہ اس کا پروجیکٹ بنا بانڈی پورہ سے لولاب. چونکہ ہمارے پاس ایک ہی روڈ ہے گلیزو، آپ نے جو بتایا ایک، وہ مطلب اس کے روڈ وہ بھی ہمارے ٹائم کا کی ایک مطلب کھلی کتاب ہے. ہم نے کتنا کام کیا، ہر ٹیم ہمیں لگی ہے، ہمیں صرف ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کام کیا ہے. کتنا آپ گناؤ گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو فرصت آئے گی کہ اگر تفصیل میں آپ کو دے دوں گا ہر ایک سیکٹر میں ہم نے کیا کیا. آپ جو مجھے بتا رہے ہیں لولاب کے بارے میں، آپ نے یہ مجھے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں فخر سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ لولاب واسیوں سے پوچھیے. لولاب جا کر آپ خود پتہ کر کے، کیونکہ آپ ایک بہت ہی اچھے ایک پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے، آپ ایک اچھی ونگس TV کے ساتھ ہے، آپ کو ہر ایک جانتا ہے ماشاءاللہ. آپ کو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عوام جج ہیں، عوام آپ کو خود بتائے گا کہ فاروق میر کے 10 اوور میں جب سے میں وائس چیئرپرسن بنا آج تک میرے لولاب میں کتنا کام ہوا، مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فاروق صاحب، اب سردیاں آنے والی ہے تقریباً، کیونکہ فار فلنگ ایریا ہے، بجلی کا جو فقدان ہے وہ تو بہت کم ہی رہتا ہے. میں آپ کو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے جو AEE ہے PDD کے، ان کے ساتھ کیسا کنیکشن ہے تاکہ جو بجلی وہاں کی دقت ہو، کیونکہ فار فلنگ ایریاز میں آلموسٹ برف باری میں بجلی کی پرابلم آ جاتی ہے. اس میں تھوڑا ایک ہی ڈپارٹمنٹ مطلب بجلی ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، علیحدہ ونگس ہے. پروجیکٹ ونگس کی آپ بات کرتے ہیں، آپ گرڈس کی بات کرتے ہیں،
आप जो हमारा AEE यहाँ पर बैठा है एग्जन, मतलब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब सोपोर से हमें जो प्रोजेक्ट विंग का एग्जन बैठता है, यहाँ एग्जन ग्रिड भी बैठता है, सोपोर में बैठता है, इधर हमारा अपना एग्जन है वो बैठता है। आपने सच बोला, सही बोला कि इस वक्त सर्दियों का ज़माना आ रहा है। आज ठीक है पूरे कश्मीर में ही कटौती हो रही है। मैंने कल ही बात की थी चीफ इंजीनियर साहब से कि जब लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि हमें खुद भी महसूस हुआ कि जो ही सर्दियाँ ने दस्तक दी, बिजली में हमें थोड़ा कटौती महसूस शुरू हो गई। तो इंशाअल्लाह रहमान हम ये कोशिश करेंगे। ये पूरी ज़िला कुपवारा की बात आपने की, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हम ये सरकार के साथ उठाएंगे। आपको ये भी जानकारी होगी कि जब हमारा अमरगढ़ का ये अपनी आरमपुरा का ग्रिड आपको जो हमसाया में पड़ता है, उसके लिए भी हमने पिछले साल नया ट्रांसफार्मर लगवाया और अपना विलगाम ग्रिड उसको भी अपग्रेड करवाया जितना भी हमसे हो सका। चूँकि इस वक्त दिल्ला से हमारी पावर सप्लाई आती है, वहाँ कटौती है। ठीक बात है, ये पूरी मैं अपनी वैली की बात करूँगा, पूरे वैली में ही हो रहा है। अब आइंदा दिनों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने कि पावर के बारे में बहुत कुछ काम किया है जो कि आया है। आपके जो वादी लोलाब है वहाँ एक बुज़ुर्गों का एक कहते हैं वो वतन है, वहाँ हमारे शाह साहब हुए जिन्होंने पूरे उम्मत मुस्लिमा की एक कहते हैं वो एक अमानत के तौर पर जो ख़त्म नबूवत की अमानत थी उस पर काम किया। उसके बाद उस वादी से आना फ़ख्र, ऑटोमेटिकली एक फ़ख्र महसूस होता है। लेकिन इल्मी निज़ाम में इस वक्त लोलाब कहाँ है? क्या आपने अच्छा सवाल तफसील भाई मुझे किया। मैं उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ फ़ख्रुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की जन्मभूमि है। तो जिन्होंने पूरे बरसगीर को अपनी इल्म से रोशनास किया। एक बहुत बड़ा मशहूर बुज़ुर्ग है, एक हमारे पास एक हस्ती है जिसने बर्ज़म एशिया में माना जाता है। बदकिस्मती से जितने भी लोग आए उन्होंने इग्नोर किया। मैंने आसारी कदीमा को वो ज़ियारत दिलवाई, 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनवाया। अगर आप कभी जाओगे तो वहाँ देखोगे सड़क भी वहाँ तक पहुँचती है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब उस प्रोजेक्ट पर काम चलेगा तो ये वाकई तौर ये इमामुल असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का जो गाँव है आपको दिखेगा कि जहाँ वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुल्क से या रियासत से ज़ायरीन आते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो अपनी तरफ से मैंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि वहाँ डेवलपमेंट के हवाले से, दूसरे के हवाले से। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ सिर्फ यूनानी डिस्पलिन थी और कुछ नहीं थी। मैंने पहले ही 1 साल हुआ है NTPIC खुरहमा के लिए मैंने सेंक्शन करवाया, बाज़ाब्ता हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुछ अपग्रेड करवाए। मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारे पास जितने भी हॉस्पिटल होते थे वो उनको वो हेल्थ डिस्पेंसरी कहते थे। मैंने आफन के लिए एक, मुश्किल जाल के लिए एक, मतलब वो सेंक्शन करवाए। चूँकि इससे पहले मैदापुरा में पुरानी एक डिस्पेंसरी थी, उसको मैंने अपग्रेड करवाया, बिल्कुल वो काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर चूँकि हमारा बिल्कुल बेटा हुआ था, जहाँ मेरी कोशिश से दिन रात में लोगों में रहता हूँ कि जो हमने लोगों के साथ वादे किए, क्योंकि आप देखते हैं आजकल डेवलपमेंट का ज़माना है। हमने लोगों के साथ वादे किए हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, पीने के पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से जो आपने मुझे क्वेश्चन किया, रोड्स के हवाले से आपने मुझे बताया, एजुकेशन के हवाले से आपने मुझे बताया। ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा कि जिस पर कोई उंगली उठाएगा कि हमने इसको आगे लाने में कोई कोशिश नहीं की। JJMM एक स्कीम है, उसमें पानी जो घर घर पानी आज का प्रोग्राम है, उसमें फारूक साहब कितने कामयाब हुए लोलाब में? सबसे ज़्यादा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में JJM की 18 स्कीम है। 18 स्कीमें थोड़ा ये छोटी बात नहीं है। 18 स्कीमें मैंने जल जीवन मिशन में बनवाई, उन पर शदमत से काम जारी है। हम वादाबंद है हर एक इंसान को नल से जल देने में, एक क्योंकि एक मरकज़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अगर तफसील आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं आपको पेश करूंगा किसी वक्त, क्योंकि मेरे साथ पूरी ये नहीं है, पूरी तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है। 18 स्कीमें जो हैं मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी लोलाब में हमने करवाई है, उन पर शदमत से काम जारी है। अभी एक ही स्कीम ऐसी है जो कि बाज़ाब्ता अप्रूव हो चुकी है, सूरीगाम। बदकिस्मती से पता नहीं वहाँ क्या प्रॉब्लम, हमने लैंड भी आइडेंटिफाई किया। मेरे साथ उस वक्त ऐसी साहब थे, वो आज चीफ इंजीनियर बने, उसके साथ वो उस वक्त के एग्जाम भी थे। वहाँ पर हमने लैंड आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर उनको वाटर रिजर्वर बनाना था, पता नहीं कौन सा टेक्निकल फॉल्ट आता है। बाकी जितनी भी स्कीमें हमने मंजूर की, अप्रूव करवाई, उन पर शदमत से काम
जारी है। वहाँ पर किसी जगह सेप्टिक टैंक्स बनी, वाटर स्टोरेज टैंक्स बनी, यहाँ किसी जगह सबसे बड़ा जो हमारा है ये फिल्ट्रेशन प्लांट, वो उस स्कीम के लिए वारणव एक जगह है, वहाँ एक कन्नाड़ है, उसके लिए अप्रूव हुआ है। डग वेल्स जो हमने बनाए हैं वावरा में है, वावरा वाटर सप्लाई स्कीम है, मैदापुरा है, इधर दरवाड़ी है, क्रूसन है, वारणव है। जितने भी हमने कोशिश की कि हर एक विलेज को जोड़ा जाए पानी के हवाले से। जो कि पुरानी पाइपें थी वो सीधा हो चुकी थी, समझो, कोई जंग आलूदा पाइपें थी, उनको वहाँ से निकाल दिया। हर जगह पानी के हवाले से ये हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। तो 100% में परफेक्ट नहीं हूँ, ऐसा भी होगा कोई गाँव, एक दो स्कीमें अभी है, साइवन की स्कीमें जो बनानी है, और शाल बटू स्कीम मैदापुरा की है, और नजार माला धारगोरा में अभी वो स्कीमें उन पर अभी उनका DPR नहीं बना है, वो भी बनेगा। इरिगेशन के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे वक्त में कुलीगाम कोल और खुरहमा कोल इरिगेशन को दी थी, वो बाज़ाब्ता कीपशन हो रही है। उसके बाद मैदापुरा में सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम होती थी इरिगेशन के हवाले से। मैदापुरा या वारणव की 2 नहरें इरिगेशन को मैंने हवाले की थी, उसके साथ गागल की, उनका DPR बन चुका है। अब वो लास्ट टच पर है, वो इंशाल्लाह इसी साल अप्रूव होगा, और हम इरिगेशन के हवाले से भी लोगों को इरिगेशन का पानी फराहम करेंगे। वाटर स्टोरेज टैंक की बात है, हम अपने जहाँ भी लोला में आप जा सकते हैं, हमने वो ऑलरेडी रेनोवेट करवाए हैं। अमृत सरोवर एक हमारी स्कीम है, जितने भी वाटर स्टोरेज टैंक्स थी उनको अमृतसर के दायरे में लाया है। हर जगह हमने वो काम किया है। फारूक साहब, अगर असम्बली इलेक्शन होते हैं, फारूक साहब तैयार है इलेक्शन के लिए? तो वो मेरे लोग आपको फैसला करेंगे, हम तो इलेक्शन से डरने वाले कभी नहीं। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोलाब की कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें हायामा भी था, कलारूस ब्लॉक भी था, और चेरकूट से, क्योंकि जब डेलिमिटेशन हुई तो हमें एक सीट अलहदा मिली डेलिमिटेशन में। तो इंशाल्लाह रहमान मैं आपको ये दावा नहीं करना मतलब करूँगा, मैं अपनी जगह सेटिस्फाई हूँ जिसके लिए लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है। अब लोलाब वाले फैसला करेंगे, MLA शिप वो मेरी देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। मैं 24/7 हर वक्त लोगों के काम में मसरूफ़ रहता हूँ। जब भी इलेक्शन का बिगल बजे तो मेरे लोग ही फिर फैसला करेंगे। फारूक साहब, अगर आप टूरिज़म की बात करेंगे, वादी लोलाब एक ऐसी जगह है जिसको जम्मू कश्मीर में टूरिज़म के नज़रिए से देखते हैं। टूरिज़म के लेवल से आपने कैसे डेवलपमेंट किया वहाँ पे? पानी तेरे चश्मों का तड़पता हो सीमा, मुर्गान शहर तेरी फिजाओं में बेताब, ऐ वादी लोलाब, ऐ वादी लोलाब। आज तक लोलाब का नाम लोगों ने सुना है, अब आपको कागज़ों पे मिलेगा, सरकार के पास मिलेगा। जितना मैंने लोलाब में टूरिज़म के लिए काम किया, हम इस वक्त लोलाब को हमने टूरिज़म के नक्शे पर लिया। आपको ये याद होगा, हमारी एक ही यहाँ पर टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लोलाब बंगस दंगाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये टूरिस्ट के लिहाज से हमारे पास ये है। चूँकि करने में तो बहुत आया था मगर कुछ नहीं। आपको ये देखा बंगस का रोड बनाने वाला भी कौन है, अपने छोटे से टर्नओवर में उसने वादी बंगस के लिए क्या क्या किया, ये आपको पता होना चाहिए। जब पिछले महीने हमारे LG साहब वहाँ गए, सबसे बड़ा फेस्टिवल वहाँ हुआ। वादी लोलाब को, इसको बंगस को टूरिज़म नक्शे पर किसने लाया, आपको ज़्यादा उसके बारे में पूरा पता है। बाकी रहा लोलाब में आज से पहले मतलब पुराने लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे टूरिज़म के ज़रिए से, यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए से। बदकिस्मती से उनको सिर्फ आधा रखा। एक चंडीगढ़ का जो हमारे पास टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, वो 10 बेड रूम है, वो इस वक्त हमारे पास फंक्शन है, उसी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दिया। बाकी डारूसा है, कायरेवन है, खुमरयाल है, शुमरयाल है, जितना भी मतलब खुरहमा है, डोबन है, वारणव है, कुलीगाम नाड़ है, जितने भी अल्लाह ताला ने हमें अपने हुस्न जमाल से नवाजा है। अगर आप बखूबी लोलाब को मतलब सर्च करोगे तो आपको नेचुरल सब पाएगा। मैं आपको ये भी आपको देखिए तौसीफ साहब, आप हमारे ज़िले से बिलोंग करते हैं, पसमानदा ज़िले से हम सब बिलोंग करते हैं। हमारे पास हमारे इकॉनमी बढ़ाने के लिए 2 ही चीज़ हमारे पास है, एक एग्रीकल्चर और एक टूरिज़म। अगर हम टूरिज़म सेक्टर को आगे ले जाएंगे तो इंशाल्लाह रहमान हम सफल हो जाएंगे। हमारी जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादातर हमने फोकस किया है टूरिज़म को। देखिए हमारे पास बॉर्डर टूरिज़म है, मच्चल है, टंगडार है,
केरन है, टीटवाल है, नवगाम है, बंगस के साथ साथ आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि इस साल केरन वैली में कितने टूरिस्ट आए, फॉरेनर्स भी आए, या मेरी मच्छल वैली में कितने टूरिस्ट आए। हमारे पास इको टूरिज़म है, हमारे पास जितनी भी हम दे सकते हैं अपनी टूरिज़म को। ज़िले कुपवारा का हर एक गाँव टूरिज़म के हवाले से बहुत मशहूर है। बंगस डेवलपमेंट इस हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 100 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है। माशाल्लाह, मैं अगर लिस्ट आपको बताऊंगा, मुझे लगता है 48 विलेज ऐसे हैं जो कि लोलाब से बिलोंग करते हैं। मैं आपको दावा से कि ये कहना चाहता हूँ। अब हम ये चाहते हैं कि पहले जब लोग आते थे उनको सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम तक ही मनसर रखा जाता था। हमारे पुराने लोगों ने, जिन्होंने लोगों के साथ इतना इस्साल किया अपने हकीर मकासद के लिए, मैं यहाँ पर चूक नहीं जाऊँगा, बिल्कुल क्लियर मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर उन्होंने अपने ज़माने में इस पर तवज्जो दिया होता तो हमारा ज़िला कुपवारा मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पर पहला ज़िला होता। अब ये देखते हैं बंगस, इस वक्त पूरे बरज़म एशिया में बंगस वैली है। ज़रा बंगस वैली का रोड आपने देखा, 4 साइड रोड उसको किसने मिलाया, वो भी आपको पूरा पता है। छोटे से टर्नओवर में हमारा डिग्री मेडिकल कॉलेज है, मतलब ये हमें कोई बता ही नहीं सकता था क्या कि इस पसमानदा ज़िले को कोई मेडिकल कॉलेज मिलेगा। किसी की कावशू की वजह से वो हमें मिला। हमारे पास इस वक्त फंक्शनल है, हम फ़ख्र से बात करना चाहते हैं। पंचायती निज़ाम पे फारूक साहब क्या नज़र रखते हैं? क्योंकि पहले ज़माने में ये 2020 में 3 टायर सिस्टम हुआ, अमेंडमेंट 73 और 74 हुआ। क्योंकि जब यहाँ पर पहले हुक्मरान होते थे, उन्होंने कभी ये तवज्जो नहीं दी कि ग्रास रूट पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वो जितने भी इलेक्शंस हुई, मैं ये आपको वसूख से कहना चाहता हूँ, 18 से पहले वो बड़ा इनाम होते थे। इस वक्त कितनी सरकार, देखिए एलजी साहब कितना फोकस लगाई हुई है इस 3 टायर सिस्टम पर। 3 टायर सिस्टम देखो, हम ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल, सब कुछ ये देखना है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल को। मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ, जब से हम आए, हर एक मेरा साथी ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हो या बीडीसी चेयरपर्सन हो, तो हमने कौंसल में हर एक को इकट्ठा चलाया। अपने ज़िला कुपवारा के लिए हर वक्त हमने अच्छा सोचा। इस डेवलपमेंट के हवाले से हम ये चाहते हैं कि इस पसमानदा ज़िले को, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग रहते हैं, हम एक ही सब पे हर एक को लेना चाहते हैं। इस ज़िला को आला मुकाम तक ले जाना चाहते हैं डेवलपमेंट के हवाले से। बाकी तो जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं, आज सरकार जवाबदेह है। मैं ये खुद आपको मतलब ये कहूँगा कि जितने भी मामला हमारे दरमियान हैं, इंशाल्लाह रहमान हम खुश असलूबी से अपना काम करते हैं, जिसके लिए लोगों ने हमें मैंडेट दे दिया है। मैं ये बताऊँ कि कितने DPRs, कितने प्रोजेक्ट्स मैंने बनवाए उस वादी लोलाब के लिए। जिस वादी लोलाब में अगर कोई मेहमान भी आता था, मतलब हमारा ये, मैं यहाँ पर मुझे शर्म नहीं महसूस नहीं हो जाएगी, वो भी उसको भी मतलब उसके लिए किसी जगह बाथरूम नहीं होता था। जब मैं अपने उस गरीब इलाके की बात करूँ, आज आप देखते हैं माशाल्लाह वावरा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं चुन कर आया हूँ, उसका नक्शा ही इंशाल्लाह बदल चुका है। वहाँ के लोग आपको बताएंगे, खुद अगर आप मुशाहिदा करोगे कि हर एक आपको बताएगा कि वाकई तो हर एक मतलब डेवलपमेंट के लिए मैंने कितना काम किया। साहब आपको मैं बताऊंगा एक बार, अब मैं जल्दी में नहीं हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने जिस अंदाज़ के साथ अवामी मसाइल को उजागर किया और आपने ज़ाती तवज्जो देकर इन तमाम मामलातों में अपना दस्तरस रखा। क्योंकि अवामी नुमाइंदा होता क्या है, वो अवामी के लिए होता है। हम आपके पास क्यों आए? इसलिए आए कि ताकि अवाम को आपका किया हुआ काम वो हाईलाइट हो और पता चले कि फारूक साहब किस नज़रिए के साथ अवाम के साथ कनेक्टेड है। तासिफ साहब, मेरे पास रिकॉर्ड है बाज़ाब्ता, मेरे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। मैं हर एक बंदे को ये कहना चाहता हूँ, लोलाब वासी को ये कहना चाहता हूँ, फारूक मीर आपका खादिम है। फारूक मीर ने अपनी जवानी आपके लिए वक़्फ़ की है। जहाँ तक मेरा बस चले तो मैं लोलाब के लिए नहीं बल्कि ज़िला कुपवारा के लोगों की खिदमत करने के लिए घर से निकला हूँ। मैं एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ। इस समय भी इवन कि मैं एक नेशनल पार्टी में था, वहाँ बड़े बड़े पदों पर मैंने काम किया है।
2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी मैंने लड़ा है, आपको ये पता होना चाहिए। मगर इस ज़िले की पसमानदी को देखकर तो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है। हम ये सोचते हैं कि हमसे जो काम होगा, ताकि कल ज़िला कुपवारा वाले ये याद रखें कि किसके टेनओवर में कौन सा काम हुआ। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, अपने लोगों का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अपनी नौजवानों का, अपनी बहनों का, जितने भी हमारे लोलाब के रहने वाले, उनको मेरा यही पैगाम है। फारूक मीर निकला है अपने घर से लोलाब को बनाने के लिए, आओ मुझे साथ दें ताकि एक नया लोलाब हम तामीर करें। और साहब इस मौक़िफ़ के लिए आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, आपने अपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे फ़ारूक मीर साहब, जिन्होंने एक मुख्तसर अंदाज में इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली कि किस तरह से हमने डेवलपमेंट पे अपना तवज्जो मरकूज़ किया और पिछले 2.5 साल में किस तरह से वादी लोलाब को ऊपर उठाकर आवाम के सामने लाया कि किस तरह की डेवलपमेंट्स काम हुए। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका भाई तौसीफ़ हमदानी। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।